تصور میں تصویر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو آپ حسینی درسگاہ چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس کے تمام ویڈیوز کو لائک کر کے ہماری اشاعت میں معاون ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ناظرین، ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کے سلسلے میں کچھ بات کی جا سکے، اور اپنی اس گفتگو کی بنیاد خود امام علیہ السلام کے اس وصیت نامے کو بنایا جائے جو انہوں نے مدینے سے روانگی کے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو عنایت فرمایا تھا۔ میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے خطبات و فرمودات و مکتوبات حسین ابن علی علیہ السلام، مدینہ تا کربلا۔ کتاب تالیف کردہ ہے حجت الاسلام محمد صادق نجمی صاحب، قم ایران کی، اور ترجمہ کیا ہے سید علی مرتضی زیدی نے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب امام علیہ السلام کے وصیت نامے۔ مولا کا مذکورہ وصیت نامہ کتاب کے صفحہ 55 پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الی اخیہ محمد ابن الحنفیہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عنده وان الجنۃ حق والنار حق والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ جتنی دور کی میں نے تلاوت کی، وصیت نامے کا پہلا حصہ کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس وصیت نامے کے تلاوت آگے کروں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک کا رواں ترجمہ اردو میں جیسا کہ مؤلف اور مترجم نے کیا ہے، آپ حضرات کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ترجمے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ جس حصے پر ہم نے نشان لگایا تھا اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اس کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اور حسین یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہے اور روز جزا کے آنے میں کوئی نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تمام اہل قبور کو زندہ کرے گا، یعنی روز جزا میں۔ اس کے بعد والا حصہ وصیت نامے کا اہم ترین حصہ کہا جا سکتا ہے، خاص کر کے یہ حصہ یہاں سے شروع ہو کے اور یہاں تک۔ ان سطور میں مولا یہ بتاتے ہیں کہ مدینے سے ان کے خروج کی کیا وجہیں نہیں ہیں، یعنی یہ بتانے سے پہلے کہ مدینے سے آخر انہوں نے خروج کیوں کیا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ کبھی بھی یہ مت سمجھ لینا کہ خروج کی وجہ ان باتوں میں سے
कुछ हो सकती है। आइए तिलावत कर देता हूँ पहले। व अन्नी लम अखरुज अशिर्रन वला बतिर्रन वला मुफसदन वला जालिमन। व अन्नी लम अखरुज अशिर्रन वला बतिर्रन वला मुफसदन वला जालिमन। लम और ला के साथ मौला ने 4 अल्फाज बयान किए हैं। पहले आइए देखें कि इनका तर्जुमा मुतरज्जिम मोहतरम ने क्या किया है। आप देखेंगे कि अहम अल्फाज का तर्जुमा और तशरीह। अहम अल्फाज यानी वो अल्फाज जिनको हम आज कीवर्ड्स कहते हैं, तो उनमें 2 लफ्ज खास करके लिखे हैं, अशर या शिरो से अशिर, सरकशी, बगावत और घमंड। सरकशी, बगावत और घमंड। बतिर, बे तोय रे, हक से रूगर्दा होना और उसके मुकाबिल पकड़ना। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि उनके खुरूज का मकसद हरगिज हरगिज न तो सरकशी और घमंड है, यानी ये सोचा नहीं जा सकता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी अना की वजह से, किसी घमंड की वजह से मदीने से खुरूज फरमा रहे हैं, या उन्होंने इस वजह से यजीद की बैत से इनकार किया है। और उसी तरह लफ्ज़ बतिर का भी इनकार कर दिया है मौला ने कि बतिर भी उनके मदीने से खुरूज का मकसद नहीं है। और बतिर का मतलब उर्दू में लिखा गया है हक से रूबर्दा होना और उसके मुकाबिल अकड़ना। यानी ऐसा नहीं है कि उनके सामने जो बात कही जा रही है वो सिर्फ अपनी अना की वजह से उससे खुदा न खास्ता अकड़ रहे हों। आइए इस हिस्से का तर्जुमा मौलिफ मोहतरम का किया हुआ देखें। वही अन्नी लम अखरुज अशिर्रन वला बतिर्रन वला मुफसिदा। मदीने से मेरा निकलना न खुद पसंदी और तफरीह की गरज से है, और न फसाद और जुल्म और सितम मेरा मकसद है। बाद के 2 लफ्ज थे वला मुफसिदन, न तो और जुल्म और सितम मेरा मकसद है। उसके आगे के हिस्से में इमाम हुसैन सलाम ने बताया कि जब ये मकसद नहीं है तो आखिर क्या है, वो जो मतन अगला में वाज़ेह होगा। इसके आगे मौला फरमाते हैं व इन्नमा खरजतु लतलबिल इस्लाहि फी उम्मति जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीदु अन आमुरा बिल मारूफे व अनहा अनिल मुनकरे व असीरा बेसीरते जद्दी व अबी अली इब्ने अबी तालिबिन व मन कबिलनी बेकबूल हक़ वल्लाह औला बिल हक़्क़न व मन रद्दा अलैया हाज़ा अस्बिर हत्ता हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु बैनी व बैनल कौमे व हुवा खैरुल हाकिमीन। इसके आगे फिर जिसे हम कह सकते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ, बात का ततिम्मा, वो फरमाया है इमाम हुसैन सलाम ने वहादिही वसीयती इलैका या अखी व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। आइए देखें निशान करके मौलिफ मोहतरम ने इसका सोर्स, इसका मंबा कि ये वसीयतनामा कहाँ से नकल फरमाया है, उन्होंने लिखा। पहला
सफ़ा 188। दूसरा मक़तले आलिम अवालिम सफ़ा 54। यहाँ से है तर्जुमा। तर्जुमा फरमाते हैं कि मैं तो सिर्फ इसलिए निकला हूँ कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ। मैं तो सिर्फ, लफ्ज़ सिर्फ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वो इसलिए कि असल मतन में लफ्ज़ इन्नमा इस्तेमाल किया है मौला ने। इसलिए निकला हूँ कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ। बदकिस्मती से मेरे पास किताब की जो नकल आई है उसमें सफ़ा 56 के बाद के सफ़े सफ़ा नंबर 49 तक मौजूद नहीं थे। चलिए हम लोग मतन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान अरबी है, आप खुद भी उसका मफ़हूम समझ सकते हैं। ये तर्जुमा तो आपने देख लिया था। फरमाते हैं उरीदो, इरादा है मेरा, अन आमरा बिल मारूफे, के अम्र बिल मारूफ करूं, व अनहा अनिल मुनकरे, और नहीं अनिल मुनकर करूं, व असीरा बेसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिबिन, और चलाऊं लोगों को अपने जद और अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर। वमन क़ाबिलनी बेक़बूल अल हक़्क़ फल्लाह, तो जो कोई मुझे कबूल कर लेगा हक कबूल करने की वजह से, तो उसके लिए अल्लाह है, औला है उसके लिए अल्लाह, उसके लिए अल्लाह ही औला है। फल्लाहु औला बिल हक़्क़, क्योंकि अल्लाह ही हक के साथ बेहतर है। वमन रद्द अलैया, और जो रद्द कर देगा इस चीज़ को, मेरी इस दावत को मेरी तरफ, वमन रद्दा अलैया हाजा, इस बात को मेरी तरफ रद्द कर देगा, पलटा देगा, मेरी बात नहीं मानेगा, अस्बिरो, तो मैं सब्र करूंगा, हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु बैनी व बैन अल कौम, यहाँ तक के अल्लाह फैसला कर दे मेरे बीच और कौम के बीच। व हुआ खैरुल हाकिमीन, और वही बेहतरीन हुक्म करने वाला है। वहाज़िही वसीयती इलैका या अख़ी, और ये मेरी वसीयत है आपके लिए है मेरे भाई। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, और अल्लाह के अलावा तौफ़ीक़ कोई नहीं है, और मैं उसी के ऊपर तवक्कुल करता हूँ और उसी की तरफ पलटता हूँ। नाज़रीन, आपने अभी अभी इस सिलसिले का एक एपिसोड देखा। अगला एपिसोड हम इंशाअल्लाह बहुत जल्दी पेश करेंगे। आपको अपने स्क्रीन पर 4 निशान ज़ाहिर होते हुए दिखाई देंगे। स्क्रीन के वसत में हमारा गोल लोगो, जो अलम के फरेरे पर या हुसैन का निशान है, दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे या टैप करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर दें। इसके अलावा आपको हमारे दूसरे अपलोड किए हुए वीडियोस के 3 थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे। आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।